सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है 39 बस का 39 बस फॉल्ट जनरेशन यूजिंग ज़ीरो इंजेक्शन बस एंड इट्स फॉल्ट डिटेक्शन इन मैटलैब के सिमिलिंक में। तो सिमिलिंक के एप्लीकेशन में हमने आपके 14 बस प्रोजेक्ट को 39 बस में कन्वर्ट किया है। तो उसके लिए हमने बेसिकली किया क्या है, जो 14 बस का प्रोजेक्ट था उसी को 4 बार कॉपी किया है। 4 बार कॉपी करके फिर उनकी सारी लिंक्स को एनालिसिस करके उनको उनके कनेक्शन किए हैं। तो 14 बस में हमारे पास कितने बसेस थी? हमारे पास 7 बसेस के 2 सेट थे। उसमें हमने 7 बसेस के 2 सेट और जोड़े, तो हमारे पास हो गया 28। फिर हमने उसमें एक बार और 7 बस जोड़ा, तो इस तरीके से हमने टोटल 39 बसेस को यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट में। और इसमें आप, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आई हैव टोल्ड अर्लियर दैट वी यूज्ड 10 जनरेटर सिस्टम्स हेयर। जनरेटर 1, जनरेटर 2, you can named here as generator, you can uh, rename it generator 1 as NTPC, NTPC. You can use this renamed as nuclear energy. You can synchronous compensator. आपने एक क्वेश्चन पूछा था, you have asked me a question that what is synchronous compensator. Synchronous compensator is a device or a mechanical or a load, is a type of load which is used to compensate your burden on the extra electricity energy on the grid, or if there is no electricity on the grid, then it will compensate these circumstances to stabilize your grid. So synchronous compensator is like a capacitor in circuit which removes the ripples and peaks of any electrical waveform. So compensator is a compensate technology of this electrical power transmission grid. So you can see here generator 1, generator 2 and one synchronous compensator. Now when we scroll it into the left, we see 6 buses and 7th bus is the important one, because we use it as a zero injection bus. We can use it as a zero injection bus, or we can generate a fault by using this module. इसको हम ब्लॉक कहते हैं. This is also called a block, where we can generate phase A, phase B, phase C और ग्राउंड रिलेटेड फॉल्ट्स. इसमें हम करते क्या हैं, बेसिकली ए बी सी तीनों फेस को या तो हम ग्राउंड से इंटरफेस करवा सकते हैं, मतलब कि जोड़ सकते हैं, या सी को केवल ग्राउंड से जोड़ सकते हैं, या बी को केवल ग्राउंड से जोड़ सकते हैं. तो जैसा कि आप देखते हैं कि हमारी पावर ट्रांसमिशन में 3 तार होते हैं, फेज ए बी सी और एक न्यूट्रल. तो न्यूट्रल को यहाँ पे ग्राउंड भी कहते हैं. ठीक है. जब भी कोई भी फॉल्ट अकर होती है तो फेज ए या बी से टकरा जाता है, बी फेज सी से टकराता है, या आपस में तीनों इंटेंगल्ड हो जाते हैं किसी घटना के द्वारा, किसी इंसिडेंट के द्वारा. तो यही जो फॉल्ट है वही ग्रिड पर अकर होती है, जिससे कि फायर लगती है, या लोड बढ़ जाता है, या लोड जो है बिल्कुल डिसबर्स हो जाता है. तो ये इस तरीके की फॉल्ट्स को हम 3 फेज फॉल्ट से जनरेट कर सकते हैं. बाकी अगर आप ज़ीरो इंजेक्शन बस का यूज़ करना चाहें तो इस बस पर ना कोई लोड है, ना कोई एनर्जी सप्लाई है. तो ये बस जो है आपकी ज़ीरो इंजेक्शन बस की तरीके से यूज्ड होगी इस प्रोजेक्ट में. दिस बस विल बी यूज्ड एज, you can use as zero injection bus. So you can see these are RLC branch. Any electrical power supply, any electrical power transmission line has its features in RLC form. So this is resistance, inductance and capacitance branch. You can see every branch is connected to this
this RLC branch, or you can connect supply to this main branch. So we have create a link. You can see these three wires are linked, main link line to the whole power supply. If we suppose, if we named, if we name this portion as a north grid, this portion of below is called south grid, and this portion of above in right side, left side, as a western grid, and this portion we can say as eastern grid. So all grids are connected by these three lines, and all four grids are connected each other by some interfacing lines or RLC branch. So in this project we are using a 10 generator. 10 generator means we are use 10 generator as energy source, electrical energy source, and compensator, and some of compensator which is in cyan magnet or pink, in color pink. These are synchronous compensator. 1 2 3 4 5 6 7 compensator are used in our project. You can note down these numbers of devices and accordingly prepare your project report. We are using some RLC loads also. You can see 1 2 3 4 5 6 are here, and 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना. इस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हैं. ये हमारे लोड हैं. ये पूरी ब्रांच आपस में कनेक्टेड है, और आपकी बसेस भी यहाँ पे देखिए 7 बसेस ऊपर हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से आपकी सारी बसेस यहाँ तक 39 बसेस हैं. तो ये आपका 39 बस का प्रोजेक्ट हो गया. उसके बाद इसमें हमने सभी कनेक्शन कर लिए हैं. अच्छा, इसमें ये तो हमारा ग्रिड की एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो गई. उसके बाद ये मेन पार्ट आता है जब हमने सभी सिग्नल को एक पास लिया है और उनको एनालिसिस करने के लिए स्कोप में प्लॉट किया है. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने कितने गो टू यूज़ किए हैं. ये जो ब्लॉक कहलाते हैं, ये सिग्नल को डाइवर्ट करते हैं. तो हमने एक जगह से सिग्नल को उठाया है और यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करके इस PMU में इस सिग्नल को फेड किया है. तो हमने कितने फ्रॉम यूज़ किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 ये हैं और 4 ये हैं, तो 8 हमने सिग्नल यूज़ किए हैं. मतलब हमने अपनी 39 बसेस को 8 जगह से मॉनिटर किया है. 39 बस को 8 जगह से मॉनिटर किया है. और किस तरीके से हमने मॉनिटर किया है? एक सिमिलर पैटर्न पे, सिमिलर डिस्टेंस पे. जैसे कि हमने बस 1 को किया है, बस 5 को किया है, बस 10 को किया है, बस 15 को किया है, बस 20 को किया है, 25 30 35. मतलब कि हमने 5 के डिफरेंस पे हर 5वीं बस को हमने मॉनिटर किया है कि क्या वहाँ पे फॉल्ट अकर हो रही है. ये इसलिए किया गया है ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जाए. वरना हम सभी बसेस को मॉनिटर कर सकते हैं और सभी पैरामीटर्स को मॉनिटर कर सकते हैं. जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हम पैरामीटर मॉनिटर करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोजेक्ट क्लमसी और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा. लेकिन ये आपका केवल प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट है, इसीलिए आपको केवल इसमें शो करना है कि हम सारी वेवफॉर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं. इसमें 14 बस में हमने 4 मक्स का यूज़ किया था, 4x1 मक्स का यूज़ किया था, जहाँ पे हमने 4 सिग्नल्स को लिया था और मल्टीप्लेक्स करके एक सिग्नल को आउट किया था. यहाँ पे हमने उसको एक्सटेंड करके 8x1 मक्स का मक्स बना दिया है. और यहाँ पे हमने 8 सिग्नल लिए हैं जो कि आपकी 8 बसेस से आ रहे हैं. इन सिग्नल्स को हमने फिर स्कोप में प्लॉट किया है और उसको एनालिसिस किया है. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 8 AMU हैं, 8 PMU हैं. PMU क्या है, जिसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं. PMU इज फेज मॉनिटरिंग, फेज मेजरमेंट यूनिट.
फेज को मेजर करता है ये यूनिट, ये डिवाइस, जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में उसका हार्डवेयर भी आपको दिखाया था कि कैसे इंडस्ट्री में वो फेज मेजरमेंट यूनिट यूज़ किए जाते हैं और उनसे डेटा को सैटेलाइट पर फेड किया जाता है या सर्वर पे फेड किया जाता है। तो ये जो आपको ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है ये मैटलैब के सिमुलिंक में आपको अवेलेबल कराया गया है। ये 2021 जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है 17 GB का, इसी सॉफ्टवेयर में ये अवेलेबल है। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम एक 3 फेज सिग्नल को लेकर उसकी किस किस फीचर्स को एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम किसी 3 फेज सिग्नल को लेते हैं जो कि ABC की फॉर्म में होता है, मतलब कि A फेज, B फेज और C फेज, और उस एक सिग्नल को लेके यहाँ पे 3 फेज सिग्नल ही फेड किया जाएगा और वो वोल्टेज सिग्नल होगा, फ्रीक्वेंसी सिग्नल नहीं होगा, वो वोल्टेज सिग्नल होगा जिसमें कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तब ये जो ब्लॉक है वो आपको क्या एनालिसिस करके दे देगा, दिस ब्लॉक विल आउटपुट will give you a result in form of magnitude, phase and frequency. This block will bifurcate a signal into three outputs: magnitude, phase and frequency, and then we will merge all these magnitudes of all buses, all these phases of buses and all these frequencies of buses in 8 into 1 mux, and then we plot in one scope. So we have done all this project successfully, and you can see this scope. When we run it, what will we show, what will we see? You can see now I am going to run this project. You can see it is compiling. You can see when we minimize our scheme, you can see screen. So you can see this is successfully simulated. Now we will double click on a scope, and you can see this is result of your project, and you can full screen by clicking on this. You can see this waveform is of bus, any of bus, और उस बस पे कौन सा सिग्नल मिल रहा है, 3 फेज सिग्नल मिल रहा है। तो आप इसमें केवल 3 कलर देख रहे हैं, एक आपका ये ब्लू में है, एक येलो में है और एक पिंक में है। तो ये जो 3 फेज हैं ये इस तरीके की आपकी पावर सप्लाई पे सिग्नल होता है जो साइमल्टेनियसली आपको 440 वोल्ट का मैग्नीट्यूड देता है, जो कि आपके 3 फेज मोटर्स में यूज़ होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 0 से 1 तक जो गया है वो आपका पॉजिटिव वोल्टेज रहता है, और 0 से -1 में जो गया है वो निगेटिव वोल्टेज रहता है, और निगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज आपका पूरा वोल्टेज रहता है जो कि किसी मोटर पर फेड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देख रहे हैं 1 × 10⁴ मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका 3 फेज जो ये सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड 10,000 वोल्ट्स का है। बात समझ रहे हैं कि आपका ये 10,000 वोल्ट पॉजिटिव में है और 10,000 वोल्ट निगेटिव में है। मतलब ये जो 3 फेज सिग्नल है ये 20,000 वोल्ट का सिग्नल है, और ये आपकी मेन ट्रांसमिशन लाइन्स पे जाता है। इसी तरीके से अगर हम ये मैग्नीट्यूड का सीक्वेंस देखें तो ये आपका 0 से 20,000 तक है, और ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है कि किस बस पर कितना मैग्नीट्यूड है। चूंकि बस में कोई फॉल्ट नहीं होगी तब सभी का मैग्नीट्यूड अराउंड 20,000 वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 0 से 20,000 जा रहा है, और हमने ऊपर भी एनालिसिस किया कि 0 से 1,000 10,000 तक पॉजिटिव है, 10,000 तक निगेटिव है। मतलब किसी 3 फेज सिग्नल का टोटल वोल्टेज 20,000 वोल्ट होगा। वही ये ग्राफ भी इसको सत्यापित करता है, प्रूव्ड करता है कि दूसरे ग्राफ में 0 से 20,000 वोल्ट तक हमारा मैग्नीट्यूड आ रहा है। और ये हमने कितने बसेस का एनालिसिस किया है, इसमें 8 बस का एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे आप इस सेकंड वाले वेव फॉर्म में, सेकंड वाले ग्राफ में 8 कलर देख सकते हैं जो कि हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, देन अगेन डार्क येलो, एंड देन अगेन
डार्क पिंक। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको आप थोड़ा सा और जूम करेंगे या इस फ्रीक्वेंसी को, इस सिग्नल को अलग स्कोप में प्लॉट करेंगे तो आपको 8 सिग्नल दिखाई पड़ेंगे जो कि 8 बसेस से 8 पीएमयू के आउटपुट हैं। ठीक है, उसके बाद हम फेज सीक्वेंस को देखेंगे कि जहां पर फॉल्ट अकर हुई है वहां पे उसका फेज ज़्यादा ही लैग कर गया है। तो ये जो रेड वाला फेज है, फेज सीक्वेंस है, वो लैग कर गया है। आप इसके डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को प्लॉट कर सकते हैं, अपना टेबल बना सकते हैं और इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं गाइड के सामने। तो यहाँ पर भी फेज जितने हैं वो 8 हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आया है, फ्रीक्वेंसी हमारी सेम है, 60 हर्ट पर है। तो 60 हर्ट पर है, इसलिए फ्रीक्वेंसी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पर मैग्नीट्यूड जो है वो 3 फेजेस का, 3 बसेस का डाउन हुआ है। वो बसेस कौन कौन सी हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा ये आज फाइनल हुआ है और आप इसका मेन स्क्रीनशॉट यहाँ पर से ले सकते हैं। और इसके बाद जो है, आप किसी भी अगर सिग्नल का मॉनिटर करना चाहें तो आप वहाँ पर स्कोप लगाकर उस सिग्नल को आप देख सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब मैं इस कोड को आपको व्हाट्सएप पे या मेल पे सेंड कर दूंगा। थैंक यू। एंड प्रिपेयर योर रिपोर्ट एंड पीपीटी एंड देन सेंड टू मी, आई विल चेक इट।